Hello and namaskar. Welcome to all of you in the third episode of Exploring the Unexplored. In this special web series, I try to explore the lives of extraordinary people, those who have impacted the lives of many people. We try to go into the lives and works which have not been known to the public, and it has not been in the public domain that we should know. And this particularly episode is very special guest Nanda sir today. Dr. S.K. Nanda sir has been a professor before joining the coveted Indian Administrative Services in 1978. He did his MA in political science with gold medal from Delhi University. He taught political science for some times there before joining this IAS. And this I'm very fortunate to have him in our session today. He cleared his IAS in his very first attempt at the age of almost 22 and served state of Gujarat for 37 years. And he has been in various senior positions, very important positions, and put indelible marks wherever he has been. Sir, very warm welcome to the show. Thank you. Sir, if I come to know about some of the aspects, I know you, I have been talking to you. So this honesty, bold leadership, and the integrity, fairness has been from the early days itself. I think I'm very lucky. Now I realize that I have got it at the part of my DNA. From the school days also, I have been very concerned with things of fairness, equality, and I have always tried to broker some kind of situations where people get into situations of harmony. So this is in addition to my schooling days, where I was supposed to only go to school and come back. But even if the tourists were harassed in my hometown, I used to get myself dragged into it to see that they are not harassed. So this kind of things were never taught to me in any schools. So that is one. Number two is that I have been always very concerned about integrity. I remember one incident in which we were all supposed to go to Srinagar in the year 67 or 68 for a debate competition from Puri. And Srinagar had no rail connectivity. We were supposed to go to some place in Punjab. From there we used to go by bus to Jammu, from Jammu to Srinagar. So when we were to board a train from Shialda, the person who was with me, the guy who was also selected for the debate competition, he belonged to a hotelier company. So he wanted to bribe that conductor, giving 5 rupees then. That was very big money. And he told me that since we were not having any reservation, so why not you pay? I said no, because the seats are not reserved. There are empty seats. Why the hell I should give it? And it is not his domain. It is he has to give me. So he tried to tell me that he will pull me out. So I wanted to teach him a lesson. So somewhere near, I think Bihar, some station was coming junction. I tried to I pulled the chain, I made a hue and cry to say that this TT is trying to pull me out of the train. So therefore, out of fear, I had to pull out the chain. So people started congregating and started beating the TT to say that how you can be unjust to a school boy. And he was forced to give me the seat, which I got it by my right. So my point was that 5 rupees was not a very big thing from me also. But I stood by the principle that why the hell I should give it. Whereas the other guy who was with me, he belonged to a hotelier company and he wanted a non-belligerent kind of a situation. He never wanted to pick up hostility, but I picked up hostility. I won in that hostility and I got the seat by my right. So that is another incident which I wanted to mention, that other than that, it was this kind of not going for unfair deals has been there since the days of my school days, and that has continued till the time I have been in service. Right, sir. Sir, at the age of 22, you have been very young, bright person and bubbling with enthusiasm, energy that I want to change something in the world. And now 37 years in the service and 65 years of almost age,
Do you think the mission is accomplished? What you wanted has been done? If you ask me mission, yes. सर अगर आप कुछ हिंदी में भी बता सके हमारे हिंदी वाले दर्शकों के लिए. No, sure, I'll mix up both. If you ask me whether I've been able to be successful in the mission, yes, I have been very delightfully happy in the sense that I have मेरे को कुछ मिला है, मैंने कुछ सिद्ध किया है. ये बिल्कुल मेरे को एक तसल्ली की बात है, क्योंकि मैंने जो चाहा था वो मेरे को मिला है. लेकिन मेरा दिल में ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो मैं दूसरे लोगों की बात सोचता हूँ, लेकिन मेरे को लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो, तुम अपने के बारे में सोचो. मैं जब इवन कि यूक्रेन रशिया के वार की बात में सोचता हूँ, कभी कोई गरीबी के बारे में सोचता हूँ, कोई ठंडी में लोगों जो सोते हैं बाहर ब्लैंकेट के बिना सोचता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं किसी को फुसला के, किसी को मदद ले के हम लोग उसके पीछे भी पड़ते हैं, रोटरी क्लब के जरिए भी जाते हैं. सो वी ट्राई टू रीच सच पीपल in the sense that how can I be helpful to people. That has been my main thing. So I believe in three things. One, I am with everyone but not with anyone. I am very inclusive, not exclusive. And I am also believing in the principle which my mother taught, never take, give. So I am very good at giving but not good at taking. So these three have made me happy. That is how I have been able to be successful. But I thought that in the bigger life, political life, public life, if I could be some of use in future, probably that would also give some happiness to people, if not to me. So what are the things? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप I see you a very energetic person. आप मुझे अभी भी यंग ही लगते हैं और हमसे ज़्यादा कई बार मैं देखता हूँ आपके अंदर एनर्जी है. तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ अभी है जो हमें करना बाकी है? देखिए, मैं अनजाने मैंने बहुत कुछ कर लिया. जैसे कि आपको मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं ही किया हूँ ऐसा नहीं, इसका तो सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता हूँ. बट आप जो अंबाजी मंदिर आप देख रहे हो गुजरात में, वो 35 फुट का था. ड्यूरिंग माई टेन्योर, मैं जब कलेक्टर था, चेयरमैन था, हमने एक निश्चय कर लिया कि मंदिर को बड़ा करना है और इसका जो परिसर है इसको एक्सपेंड करना है. हमने सब जो इंक्रोचमेंट तोड़वा के मंदिर को 105 फुट करवाया. इसके पत्थर जितने लाना था सब लाए, कमेटी भी बनी और ये सब काम 10 महीने में हुआ. अनजाने में मैंने भी वो भावगढ़ में रोपवेज डलवाया. मैंने ये सोचा कि बूढ़े लोग कैसे जाएंगे, महिलाओं कैसे जाएंगे. आदिवासी की लड़कियों के ऊपर रेप की या बलात्कार की बहुत घटना हमें मिलता था रिपोर्ट्स व्हेन आई वाज कलेक्टर पंचमहाल. तो इसके लिए हम इंदिरा गांधी तक गए और इसकी परमिशन लेके आए और ये पावर रोपेज चालू हुआ. इसी तरह हम लोगों ने जो खोडियार माता है अपने भावनगर में देखा होगा, वो तालाब सूख गया था. वो भावनगर कॉरपोरेशन के बाहर था, मैं कमिश्नर था. तो कमिश्नर होते हुए भी मैंने जब प्रस्ताव किया कि हमारे गौरव है कि हमारा खोडियार माता है, तो उन्होंने बोला माता जी है हमारे गौरव, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि कॉरपोरेशन एरिया से वो 17 किलोमीटर दूर है. तो मैंने कहा, जब उस समय चिमन भाई पटेल थे चीफ मिनिस्टर, और संजोगवशात क्या हुआ कि वो बॉडी टर्मिनेट हो गया. एंड व्हेन द बॉडी वाज टर्मिनेटेड, आई बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटर भाई बरदार. द मोमेंट फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू कनेक्ट दिस टेम्पल्स तालाब with the dam water coming from शत्रुंजी. और उसी पानी में अभी चलाता है पानी. पहले बाल्टी लेके डोल लेके लोगों पुजारी हमें कंप्लेन करता था कि माता जी के लिए पानी नहीं है. तो ये मैं सीधी नहीं कहूँगा, अनजाने में कुछ ऐसा चीज़ किया हूँ जो हमारा आप कहेंगे नैतिकता से हो या आध्यात्मिकता से हो किया हूँ. सिमिलरली आपने देखा होगा जूनागढ़ में, जूनागढ़ में जो गिरनार को जाने वाले जो सीढ़ियाँ हैं वो पहले 10 फुट का था. 2 रोप पब्लिक जा नहीं सकते थे. उसको मैंने लड़ने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कलेक्टर होते हुए हमने उसको 20 फुट किया और पूरा लाइटिंग करवाया. और फिर वहाँ रोपवेज की प्रस्ताव भी हमने किया. डांग जिला की मैं प्रभारी रहा. डांग जिला में कहते थे कि नक्सलवादी आ जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र तक आ चुका है, अभी सिर्फ बाकी है गुजरात. हमने उसी समय हमारे मुख्यमंत्री को कहा कि मेरे को आप सौंपो
लोगों को इस तरह हम लोग खलबलाते जो करते हैं ना कि वो पुलिस फोर्स डाल दो, बुलेट लगाओ, इसमें से हम नहीं करेंगे। हम इसको आगे से बढ़ाएंगे। और देखिए आज डांग जिला जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, अभी वहाँ के लोगों में खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी है, सब गांव में लाइट है, सब गांव में रोड है। इसके लिए हम लोग तपस्या जैसे काम किए हैं और फ़ायदा उनको मिला है। ये सब हमें तसल्ली देता है। तो इन सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं सर, इनमें आपके दिल के करीब कौन सी थी जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आया हो? और एक ये, और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता था कि आपका इतना वास्ट नेटवर्क है, आप बहुत सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में भी और पब्लिक के बीच में बहुत ही पीपल्स एंड ऑफिसर माने जाते हैं, तो उसका भी जवाब दीजिएगा। पहले कौन सा प्रोजेक्ट आपके दिल के एकदम करीब है, जिसको करने में आपको एकदम ऐसा लगा हो कि हमें फुलफिल हुआ? देखिए, मैं पहला यदि आप कहेंगे मेरा और दूसरा अफसर में इतना फ़र्क है, दूसरा अफसर क्या करते हैं, उनको जो कहा जाता है वो करते हैं। हाँ, क्योंकि वो सोचते हैं सरकार तो मेरी नहीं है, सरकार कोई दूसरा पॉलिटिकल बॉडी का है। हमने ये सोचा कि सरकार भले इनकी हो, लेकिन मेरे को जो उचित करना है मैं करूँगा। इसीलिए आप, ये शायद अंतर है। हाँ, इसमें अंतर इतना है, मेरे को ना कहते हुए भी हमने करा है। कैसा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमने ये पतंगबाजी होती है गुजरात में, उसमें चाइनीज़ डोरी लगाते थे जी। चाइनीज़ डोरी लगाने के क्यों लगाते थे? क्योंकि वहाँ 45 रुपीज़ में मिलता है, और 45 रुपीज़ में मिलता है तो सब गुजराती लोग बिकॉज पैसा के बचत के लिए वो लोग पीछे पड़ते हैं कि सस्ता में लाओ। तो हमने इसको बैन किया। क्यों बैन किया? क्योंकि प्लास्टिक डोरी यदि 2 करोड़ आदमी चलाएंगे ऊपर, और एक फिरकी में यदि 500 यार्ड का होगा तो 10 लाख 1 करोड़ जितना मीटर प्लास्टिक जाएगा किधर? हमने सोचा इसको, किधर जाएगा? खेत में जाएगा? नहीं जाएगा, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा। पानी में आएगा, ब्लॉक करेगा। एनिमल में जाएगा, खा के मरेंगे। करेक्ट। पेड़ में जाएगा तो घोंसला को तोड़ देगा। तो लोगों को जाएगा, स्कूटरिस्ट को, उसको गला काट देगा। किसने सोचा होगा पता नहीं, लेकिन हमने बैन किया, इम्प्लीमेंट किया इसको। तो बैन जब किया तब उस टाइम कोई सरकार ने नहीं कहा था मेरे को बैन करने के लिए, मैंने ही बैन किया। क्यों? हमारी सत्ता थी, हमारे एक्ट में मेरे को सत्ता थी। इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो गणपति का आप देख रहे हैं, जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बड़े बड़े मूर्ति करके चलते हैं। अभी वो क्रेन लगा के चलाते, हर होल इंडिया में चल रहा है। शुरुआत मैंने ही किया यहाँ। क्यों किया? क्योंकि इसमें से जो कपड़े धोते हैं इस पानी में, इसको यदि कपड़ा हम धोएंगे और बर्तन धोएंगे, उसकी जो कुछ भी जो चीज़ें रह जाती हैं जी, वो चीज़ लोगों को बर्बाद कर देगा, स्किन कैंसर लाएगा और प्रॉब्लम भी बाद में हो सकता है जी। इसलिए हम लोगों ने इसको बैन किया। तो ये सब जो चीज़ है, मैं आपको जो बोला कि जो डिफरेंस क्या है मेरा ये डिफरेंस है कि आई टेक थिंग्स ऑन माई ओन शोल्डर्स एंड आई कंप्लीट टिल द लास्ट पॉइंट because I am convinced about its effects, and there is no agenda behind anyone, and there is no agenda of mine. It is all meant for public. इसीलिए मैं इसको सक्सेसफुल हूँ, इसीलिए मैं जीता हूँ। और जीएसएफसी बाईपास, बड़ौदा में आप बाईपास जानते हैं जी। पहले सयाजीगंज होके सब ट्रकों जाते थे। 1980-81 की घटना है। हर दिन 25 लाख को इंस्पेक्शन करने के लिए मेरे को आना पड़ता था, मेरे को जाना पड़ता था। क्यों? मैं एसडीएम था बड़ौदा सिटी का। तो चीफ सेक्रेटरी उस टाइम के कपूर साहब थे जो चेयरमैन यूपीएससी बने। तो उन्होंने बोला कि एवरीडे यू डू दिस डर्टी जॉब, ये डोंकीज जॉब, गधे जैसा काम करते हो, इसका कुछ हो सकता है उपाय, विकल्प? मैंने बोला सर हो सकता है यदि हम उसको बाईपास लेंगे। तो कितना दिन में हो जाएगा? बोले सर सत्ता देंगे तो 3 महीने में। आज से मैं दे रहा हूँ। बड़ौदा सर्किट हाउस में ये बात हुई, कंसेंट में हम अवार्ड लिए। 6 महीने में हम लोगों ने जमीन ले लिया सबका, और बाईपास तैयार हुआ 10 महीने में। और आप जो आज ये बड़ौदा सिटी के बिना जो जा रहे हैं, वो बाईपास हम लोगों ने 10 महीने में कंप्लीट किया है। ये आपने बोला कौन सा चीज़ आपको हैप्पीनेस देता है? वो मेरे को खुशी होता है क्योंकि मैंने ये बनवाया। मैंने आराधना के पास में बड़ौदा में सिटी था, मुस्लिम विस्तार थे, उनको दरगाह थे, वो जाने नहीं देते थे टुवर्ड्स भुतड़ी जाफा सिटी में। मैं सिटी कमिश्नर था, वहाँ कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर भी था। तो उसी लोगों को बुलवा के, उनको मोटिवेट करके, उनको जागृत करके, उनको विश्वास में लेके हटवाया, और वहाँ हमारे ब्रिज हुई। ये सब चीज़ है जो है ना, वो अच्छा लगता है। क्योंकि हमको बोलेंगे तुम क्या किए,
हम जैसे कहेंगे हमने 100 फाइल देखा, क्या कुछ आदमी को हेल्प किया? याद नहीं है, लेकिन मेरे को याद है मैंने रोपेज लगाया, सिटी में मैंने सब गार्डन लाया, समा सावली को मैंने समा और जो एरिया है बड़ौदा का, वो एरिया में काफ़ी लोगों का इंक्रोचमेंट था, सब लोगों को लेके उसमें टाउन प्लानिंग करवाया। गोत्री और बड़ौदा सिटी का पानी और पानी गेट के पानी में लेकर हम लोगों ने टाटा कंसल्टेंट्स को ला के उसको हमने पानी दोनों तरफ मिले, इसकी हमने योजना बनाई। ये सब चीज़ हमको कहा नहीं गया था कॉरपोरेशन की तरफ से। मैं प्रपोज करता था सामान्य सभा में कि मेरी ये प्रपोजल है, और मेरे साथ एक चीज़ भगवान ने एक दिया कि मेरे बात कोई टाला नहीं है। हाँ। क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई पैसा लेने का नहीं है। उनको पता है मैं पैसे को लात मारता हूँ। उनको अच्छी तरह पता है कि मैं जिस घराना से हूँ, हम लोग बहुत खानदानी घर से हैं, और सत्ता के उससे होगा तो भी हम लोग सत्ता देखे हैं, जमीन देखे हैं। तो ये सब चीज़ बहुत गौण होता है मेरे लिए, इस बहुत छोटी चीज़ होती है। तो इसीलिए मेरे को तसल्ली ये है कि मैंने जो करा, कुछ काम किया, वो लोगों को फायदा होगा। तो ऑफिसर्स को सर अगर हम केवल यही बात करें, छोटी लिमिटेड बात की, सब लोग इस तरह क्यों नहीं कर पाते? उनके क्या अपने जजमेंटल ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ को जज करते हैं ज़्यादा, और ऑल आउट क्यों नहीं जाते हैं प्रोजेक्ट? इसीलिए ये लोग दोनों दूसरों को खुश करना चाहते हैं। हम दूसरों को खुश नहीं करना चाहते, हम अपने में खुशहाली लाना चाहते हैं कि मैं जो किया वो मेरे काम से लोगों को खुशी मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि एक्सक्लूसिव, आई डोंट वांट टू बी एक्सक्लूसिव, आई वांट टू बी इंक्लूसिव, आई वांट टू गिव नॉट टेक, आई वांट टू बी एवरीवन। मेरे को चाय वाला से लेकर आदिवासी महिला से लेकर प्रधानमंत्री तक, इवन नरेंद्र भाई मोदी के साथ मैं मिलता रहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। वही एजेंडा, वही बात, वही टोन, इसी के साथ हम बोलते हैं। लोगों को पहचाना, आर्टिफिशियल होने की, कृत्रिम होने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट बी आर्टिफिशियल, यू डोंट शो ऑफ। क्या शो ऑफ करना है? माँ के पेट से तो कुर्सी लेके हमने जन्म नहीं लिया, कुर्सी तो बाद में मिली, कुर्सी चली जाएगी। लोगों जो रहेगा आपके नाम और काम रहेगा, ये मान के हम चलते हैं, इसलिए हम लोग इसी के पीछे पड़े हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया लगा। हमारे पास एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे एक एक शब्द या एक एक लाइन के सवाल पूछेंगे, लेकिन उसके पहले एक और सवाल है जो, क्योंकि आपका इतना ग्लोरियस 37 ईयर्स का करियर रहा है, और लोग बाग ये जानना चाहते हैं कि ये 37 ईयर्स में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप एकदम हाई समझते हैं, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप लो समझते हैं, पर्सनल फ्रंट में भी 37 ईयर्स में और प्रोफेशनल फ्रंट में भी? देखिए, मैं 37 ईयर की यदि मैं समीक्षा करूँगा, मेरा पहला 2 साल सर्विस में जब बड़ौदा में आया गुजरात में, बहुत 22 साल से 24-25 साल तक था, मेरे पर इतने काम दिया गया, इतना काम दिया गया, और गुजराती नहीं जानता था। तभी मैं गुजरात में जजमेंट लिखना शुरू कर दिया। वो मेरे को एक सिद्धि लगी है, बहुत बड़ी चीज़ मैंने उपलब्धि किया है। क्योंकि आप लोग बाहर से जब आते हो ना, अभी तक वो गुजराती बोल नहीं सकते। मैं गुजराती में अपना दिव्य भास्कर में मैं कॉलमिस्ट हूँ, आपको शायद पता होगा। मैं लिखता हूँ, बिल्कुल। अभी गुरुवार में लिखता था 6-8 महीने, और मेरा गुजराती पर पकड़ जो 4-5 महीने में आया, वो मेरे को एक बहुत बड़ी सिद्धि में मान के बड़ौदा में चला। और ये सिद्धि को मैंने अनफॉर्चुनेटली मेरे कलेक्टर जो थे वो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में पीड़ित थे। तो सब हमेशा वो भी जाते थे 6-7 दिन चेकअप के लिए। उस समय मेरे चार्ज कलेक्टर का मेरे पास रहता था। कौन कितने उम्र में? 23 साल की उम्र में, फर्स्ट पोस्टिंग। और हाँ, फर्स्ट पोस्टिंग। और मैं किसके साथ काम कर रहा था? 50 वर्ष के एसपी, उस टाइम कमिश्नर नहीं थी, पुलिस नहीं थी, और सब लोग थे 45 से 50 के बीच में। मेरे को चेयर करना पड़ता था मीटिंग, आई एम द हेड ऑफ द मीटिंग। तो उस टाइम जैसे श्री कृष्ण कहते थे अर्जुन को कि मत नमो, आगे चलो, आप कुर्सी की इज्जत रखे आगे काम करो। वो कुर्सी की इज्जत रखे मैं काम किया, और मेरे को इसलिए और बहुत काम था, जैसे लैंड एक्विजिशन है, टुकड़ा धारा है, सीलिंग है, अर्बन लैंड सीलिंग है, बूढ़ा का रचना हुआ, ये सब काम एक साथ जब मैं देखने लगा, और इतना छोटी उम्र में, और मैं उसको संभाल भी पाया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सिद्धि लगता है कि उसी समय में। और जब अभी की बात करूं, आप कहेंगे कौन सा बड़ी सिद्धि है? तो मतलब सर, आपका जो पहली पोस्टिंग है जब यंग ऑफिसर थे, उसको आप प्रोफेशनल हाई मानते हैं अभी? हाँ, बहुत हाई मानता हूँ। बहुत कम लोग होंगे ऐसे कि जो बहुत हाई मानता हूँ, क्योंकि मेरे को सब जड़ उसको पता लग गया, सब जड़ी बूटी वहाँ मिला मेरे को। क्यों, मेरे समय में आगा खान आए, इंदिरा गांधी 2 बार आई,
प्रेसिडेंट युगांडा एक बार आया, और बड़ी हस्तियां बड़ौदा में लैंडिंग करते थे। वीआईपी ड्यूटी मेरी थी, और उस टाइम हमारे कोर्ट केसेस हम लोग चलाते थे। हमारा कोर्ट चलता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोर्ट चलता था जी। और आदिवासी एरिया है, छोटा उदयपुर उस टाइम जिला नहीं था। आदिवासी जिला का प्रॉब्लम को हम लोग संभालते। तो मेरे को आदिवासी कम्युनल हिंदू मुस्लिम एरिया है बड़ौदा में, उनको हम संभालते थे। सिटी ट्रैफिक है, इंडस्ट्रियल ट्रैफिक है, जेआईडीसी की रचना हुई, मकरपुरा आया, वाघोड़िया आया, कैसा रचना होता है, सब हमको सिखामण जिसको बोलते हैं, सबका जो नॉलेज ये फर्स्ट 2 इयर्स में कैसा जीआईडीसी बनता है, क्या प्राइम मिनिस्टर विजिट में, क्या वीआईपी विजिट में क्या करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारे इंडस्ट्रियल फॉर एग्जाम्पल आईपीसीएल जीएसएफसी कहते थे कि यदि ब्लास्ट करेगा बड़ौदा उड़ जाएगा, उसके पर शेल्टर प्रोजेक्ट क्या होगा, उसका प्रिवेंशन कैसा होगा, उसके लिए माथामण हम लोग करते थे। तो ये सब में जो निष्णातगिरी या सब में जो हाथ डालने का अवसर मिला, इस स्टेज में मेरे को मिला। मुझे लगता है एक्चुअली बड़ौदा आपका सेकंड होम जैसा है। ऐसा है। और दूसरा है, मेरे को अच्छा लगता है दूसरे काम में, जो कि अब शायद लोगों को पता नहीं होगा, वलसाड से लेकर कच्छ तक 1000 स्क्वायर किलोमीटर मैंने चेयर मैंग्रोव लगाया। मेरा 4 साल के समय फॉरेस्ट सेक्रेटरी में, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेरे को एक रिकॉग्निशन मिला है। और यूएनओ तरफ से भी उन्होंने कहा कि सुंदरबन के कंपैरिजन में, तुलना में, हमारे वहाँ के जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर 3 साल में डेवलप हुआ, वो हमारा यथार्थ प्रयत्न के लिए हुआ है। और ये चेयर लगाने के बाद जितने कम्युनिटी रहते थे सलाइन एरियाज में, कोस्टल एरियाज में, उनका डेयरी उद्योग चालू हो सका। कहीं उनके पत्ते से वो लोग डेयरी का दूध मिलने लगा। उनका जो सैलिनिटी आता था, जो खार थी, मिट्टी में कम हो गई, और वो लोग एग्रीकल्चर करने लगे। और उन लोगों ने हमारे बिहाफ में उन लोगों ने जतन करना चालू किया कि कोई कट ना दे। तो हमें हमारा आदमी को रखना नहीं पड़ा फॉरेस्ट का। सर, कोई आपका प्रोफेशनल मतलब पर्सनल पॉइंट पे कोई आपको लगा कि लो पॉइंट फील हुआ हो ड्यूरिंग दिस टाइम, कुछ आप बताना चाहें लोगों को? मेरा ऐसा लगता था कि लो पॉइंट हुआ था एक समय में, जब मेरे चीफ सेक्रेटरी के साथ अनबनी हुआ, तो उन्होंने मेरे को रिलीफ कमिश्नर तरीके डाल दिया। क्योंकि मैं था उस टाइम, तो उसको क्या पनिशमेंट पोस्टिंग जैसे मानी जाती है? उस टाइम मानते थे कि उसको कुछ नहीं है, उसको रिलीफ में डाल दो। मतलब जब कोई फ्लड होगा तो लोगों को 2 रुपया 4 रुपया दिया जाता है, लोगों को बसवाट करवाते हैं, ये सब काम में लगेगा। लेकिन भगवान ने मेरे को एक तो वरदान है मेरे पास। रिलीफ कमिश्नर के समय में मैंने हैम रेडियो को चलाया, हैम रेडियो में सीखा, हैम रेडियो क्लब बनाया, और अभी हैम रेडियो का मैं अभी भी चेयरमैन हूँ। तो जब भी सब उड़ जाता है, आपका वो फ्रीक्वेंसी उड़ जाता है, सेल फोन उड़ जाता है, पुलिस का वायरलेस उड़ जाता है, हमारा हैम फोन के साथ मैं अमेरिका भी बात कर सकता हूँ यदि मेरा फ्रीक्वेंसी। कैसे सर, एक अगर संक्षेप में हमें बता सकें कि हैम रेडियो क्या होता है? हैम रेडियो एक रेडियो है जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो होता है। अच्छा। उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है, हाउ टू तो उसके ट्रांसमीटर रिसीवर किससे कनेक्ट होते हैं? ये ट्रांसमीटर जो रिसीवर जो काम होता है थ्रू फ्रीक्वेंसी। अच्छा। ये फ्रीक्वेंसी हमारा 400 फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है। अच्छा। तो आप लॉगिंग इन करेंगे फ्रीक्वेंसी में, आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, जैसे कि WX माइक एक्सरे, WX माइक एक्सरे, WXMX, राइट। तो आप कहेंगे WX माइक एक्सरे मीन्स यू आर फ्रॉम इंडिया एंड आपका गुजरात का। यस। तो इसका सबका कोडिंग दिया जाता है। तो उनका ट्रेनिंग मैंने किया गुजरात में से। मैंने अभी तक 1000 जितने लड़कियों को मैंने ट्रेनिंग दिया, उन्हीं को मैंने भेजा था। जब हेलिना आइलैंड में बाढ़ आई, अर्थक्वेक आया अंडमान निकोबार में, ये बच्चे गए थे हमारे। तो ये क्या गवर्नमेंट एजेंसी है या मतलब कुछ कैसे डेवलप हुआ है? ये एनजीओ मेरा है। अच्छा, एनजीओ के थ्रू है। वो मैंने वही तो किया, रिलीफ में जब था ये मैंने चालू किया। दूसरा, बाबा अमरनाथ केव में ट्रेजेडी हुई, गुजरात लोग फंस गए, बहुत लोग मरे गए। तो सरकार ने कहा कि कौन जाएगा, कोई जाने के लिए मन नहीं किया, बिकॉज श्रीनगर बहुत टेंशन में था, फायरिंग होती थी। तो मैं इस हेलीकॉप्टर को लेके गया। मैं बालतेल में, मैं चंदनवाड़ी में, पहलगांव में लैंड किया, फिर चंदनवाड़ी गया, बालतेल गया, फिर मैं कारगिल होके चंदनवाड़ी गया। और हम लोग जितने गुजराती लोग मर गए थे,
उनका फोटोग्राफ लिया और उनका जो खच्चर होता है, खच्चर के द्वारा खच्चर लोगों को 50 रुपये दे के हम लोग सब श्रीनगर से डेड बॉडीज मंगाते थे। तो उस समय में मैं हमेशा छाया रहता था कागज में। मतलब आप करेजियस तो बहुत है। मैं वही कह रहा हूँ। तो डर तो मेरा कोई लगता ही नहीं। सो उस टाइम CS अभी नहीं है। उस टाइम के मुकेश जी ने बोला कि ये आदमी को हमने ऐसे जगह में बिठा दिया था इसमें कुछ आवाज़ नहीं निकलेगा। तो उसका आवाज़ तो हर दिन पेपर में आता है। मतलब वो क्योंकि मेरा फ्रिक्वेंट मेरा टेलीफोन, मेरा हैम रेडियो कॉल्स हर दिन गांधीनगर कंट्रोल रूम में आता था कि हिम्मतनगर से 2 बसेस जो गई थी, पटेल ट्रांसपोर्ट, दोनों ठीक ठाक है, 2 आदमी मिसिंग है। हाँ। ये इन्फॉर्मेशन आता था रात को, दिन को। मतलब चैलेंज को आपने एकदम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरे को ऐसा कोई चीज़ नहीं, मैं डरता हूँ। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भगवान करे मेरे को जो चीज़ दूसरों से निपट नहीं जा सकता है, खराब में खराब 500 लोगों का जुलूस आ रहा है, खराब में खराब फायर है, खराब में खराब साइक्लोन है। आज 1998 में साइक्लोन जो हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो थपथपा के बोले केशुभाई के ऊपर कि आपने 2 दिन में द्वारका और जामनगर को रेडी कर दिया है। उस टाइम हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हम लोग मेंबर थे। इसीलिए हम कहते हैं भगवान करें हमें सबसे खराब पोस्टिंग दिया जाए। एनडीए में सर इसीलिए हैंडल कर रहे हैं और जो दूसरों से नहीं बन सकता मैं इसे हैंडल करना चाहता हूँ। ओके। जो कोई वहाँ चला नहीं है, मैं चलना चाहता हूँ। सर मैं आपसे थोड़े छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप किस बात से, बहुत सारी चीज़ें तो हैं आपको, प्रोफेशनल जो आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उनसे आपको बड़ी खुशी मिलती है, पर्सनल लेवल पे भी आपको, यू आर जनरली हैप्पी पर्सन। मैं तो हमेशा जब भी मिलता हूँ या जानता हूँ जितना भी, आप जनरली हैप्पी पर्सन हैं। तो आपको जनरली किस चीज़ से खुशी मिलती है? देखिए मैं इसलिए हैप्पी हूँ बिकॉज मैं साइड बाय साइड ये जो सर्विस मेरा सर्विस को मैं पूजा नहीं करता हूँ जैसे और लोग पूजा करते हैं। मतलब वे ऑफ लाइफ है मेरा ये एक प्रणालिका है, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज्ञान लिया हूँ, मैं आयुर्वेदिक में काफ़ी ज्ञान लिया हूँ, मैं योगा में काफ़ी शिवानंद इंस्टीट्यूट में से योगा के ट्रेनिंग भी लिया हूँ, और मैं कुछ लोगों को आते जाते मरते बचते डरते तरते सब में देखा हूँ। मतलब आप हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हो। हाँ, शायद तो यही मैं खुशी का कारण अभी है। निष्कर्ष में पहुँचा है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, इम्पोर्टेंट है आपकी पुरुषार्थ, करेक्ट, आपकी मेंटल कंडीशन। देखिए मैं ये जो कोविड था, कोविड में कोई नहीं निकलता था, मेरे उम्र के लोगों कोई निकलते थे नहीं। मैं नहीं कहूँगा बहादुरी है मेरा। हाँ, मैं तो आपके बहुत सीक्रेट जानता हूँ। आप बताना नहीं चाहते कुछ चीज़ों को। मैं मोरबी, सूरत, अहमदाबाद से गाड़ियों को रेल को मैं फ्लैग करता था। हाँ। और मैं हमेशा पहनता नहीं था, जो मैं मानता था कि इम्यूनिटी स्ट्रांग यदि आपकी होगी कोई वायरस के अंदर नहीं आ सकता है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आयुर्वेदिक की हम लोग प्रैक्टिसेस को हम लोग बढ़ावा देते रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी इसीलिए मैं मानता हूँ कि आप लोग यदि हिंदुत्व में मानते हैं और मानते हैं कि आप लोगों के उपकार के लिए आप जन्म लिए हैं, तो स्टार्स नक्षत्र को भी आप मानिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं सर्वोपरि हूँ जी। इसीलिए मैं जानता हूँ कि देखो हमारा में बहुत सीमित है, हम बहुत कण है हम उसको बोलते हैं। हम इसको यदि बहुत बड़ापन में सोचने लगेंगे शायद हम मूर्ख हैं। सर आप अगर आपसे ये जाने कि आपको कौन से व्यवहार से बड़ा इरिटेशन होता है कि लोगों की कौन सी बात इर्क करती है आपको? घमंड। हाँ, ईगो। ज़्यादा लोग जो आदमी बहुत घमंड दिखाते हैं उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो आदमी लायक नहीं है। जो आदमी लायक नहीं होता है वो घमंड बताता है जी। और इसीलिए गैर लायक आदमी के साथ मैं क्यों बैठूं। और सर मैं जहाँ तक जानता हूँ आपका पूरे इंडिया में ऑल इंडिया नेटवर्क है ऑफिसर्स का, सब तरह के ऑफिसर्स का। आप अपने अलावा, आप तो है ही हैं, सब जानते ही हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें करते हैं। आप किसी ऑफिसर को एडमायर करते हैं, पहले के या बाद के या अभी के? मैं देखिए मैं जो एडमायर करूँगा अभी का तो कोई नहीं है। मेरा अपना कलेक्टर जो था चौधरी और कोहेलो साहब थे, दोनों। एक कोहेलो साहब मर गए 60 बहुत पुराने थे, आप लोग नहीं जानते नहीं है। उनसे मैं सीखा हूँ, प्रेरित हुआ हूँ। और चौधरी साहब थे जिनसे मैं सीखा हूँ, उन्होंने मेरे को 3 चीज़ सिखाया कि टेबल के उस पार में जो आदमी बैठा है 2 मिनट के लिए तुम सोच लो कि तुम उसी पार बैठे हो तो तुम्हें सलूशन मिल जाएगा। तुम यदि हमेशा बोलोगे मैं इस पार में बैठा हूँ, सलूशन नहीं निकलेगा। दूसरा है, उन्होंने मेरे को सिखाया कि कोई आदमी ऐसा बोल दे वो तुम्हारा आदमी है
तो इसको खंडन करने के लिए तुम हमेशा लोगों को ये बताना कि भाई मैं किसी का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ, इसलिए मैं बोलता था आई एम विद एवरीवन नॉट विद एनीवन। ये दो चीज़ मेरे को बहुत आगे बढ़ाया। सर्विसेज थोड़ा चेंज हुई है सर ड्यूरिंग दिस 45 ईयर्स हो गए, 59 में शायद ये बहुत चेंज हो गया है। बिकॉज अभी मेरे को ऐसा लगता था कि ब्यूरोक्रेसी हम लोग जब थे, हम लोग चलाते थे सिस्टम को, घास से लेकर पानी से लेकर डेकोइटी। आप बहुत प्राउड फील करते हो अभी भी, मैं देखा हूँ आप लोगों को बड़ा मतलब अपने आप। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ये लोग जितने बोला जाता है लिखने के लिए 2-3 पंक्ति उतना करो, कुछ नया चीज़ मैं नहीं देख रहा हूँ जो हो रहा है। और ज़्यादा क्या है कि यहाँ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस भी बहुत बढ़ गया है। पहले पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हमारे रोड तक, हमारे कमरा तक आता नहीं था, आता था तभी हम उसको कंट्रोल करके रखते थे। अभी ये लोग इनसे डरते हैं, ये दो फर्क है। अगर सर सोसाइटी की बात करें कि आपके हिसाब से सोसाइटी, व्हाट इज एलिंग सोसाइटी, सोसाइटी को क्या तकलीफ है आज के टाइम में? अभी सोसाइटी में एग्रिंग है, जो एलिंग है क्विक मनी, किसी भी तरह रातों रात हमें पैसा बनाना है। उसी चक्कर में साइबर क्राइम भी होता है, उसी चक्कर में चीटिंग होता है, उसी चक्कर में रेप होता है, उसी चक्कर में पॉलिटिकल फ़ायदा लिया जाता है, उसी चक्कर में करप्शन होता है, उसी चक्कर में पूरा इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसी चक्कर में सब कुछ। यदि अपना काम अपना करेंगे, हम यदि 10,000 रुपये में जो जीते हैं, हम 10,000 रुपये में जीने की कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम 10,000 रुपये कमाएंगे लेकिन 20,000 रुपये को हम लोग आँख रखेंगे, वो प्रॉब्लम मेरे लिए, घर के लिए, सबके लिए होता है। और सर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं, मिले हैं, पर्सनल लेवल पे मिलते रहते हैं, फिल्मों से हैं, पॉलिटिक्स से हैं, आर्ट फील्ड के हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप किसी ऐसे व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जिनको आप एडमायर करते हो? एक व्यक्ति का अगर नाम आपको बताना चाहें तो किसका बताएंगे? देखिए ऐसा है कि जिसका खुद का कुछ लाइट ना हो ना, वो इन्फ्लुएंस होगा। हाँ। मैं तो आपसे भी, इनके भाई से भी, मेरे को ऐसा कुछ लगा कि इनसे कुछ सीखना है, तभी मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत साल पहले जब नया नया आता तो मैं सिगरेट पीता था। मैं गड़ू करके गांव है पादरा तालुका में, वहाँ इंस्पेक्शन में गया तो सरपंच ने कहा, मैं देखा कि वहाँ सिगरेट पैकेट पड़ी है, तो मैंने बोला सरपंच को तुम सिगरेट पीते हो? बोला नहीं सर आपके लिए मंगाया। मैंने बोला कौन बोला तुमको? नहीं सर हमको तो पता है ना आपके बारे में। तो उसने ये कहा मेरे को, आप सर कितना, आपका वतन कहाँ है? मैंने बोला जगन्नाथपुरी है। यहाँ से कितना दूर है? उन्होंने बोला कि 1900 किलोमीटर है। बोला आपको पगार कितना मिलता है? मैंने बोला मेरे को पगार उस टाइम 1400 रुपये मिलता था। तो बोला 1400 रुपये मिलता था, 1900 किलोमीटर आता था, तो पर किलोमीटर आपको 80 पैसा मिलता है। तो मैं सही है। तो इसी प्रकार का इसी प्रकार के लोगों से भी मैं मिला हूँ। तो कोई डिस्टर्ब हो जाएगा, बोले क्या मैं करता हूँ, पैसा बनाना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। मतलब यही तो हम उसके ऊपर हम करते थे, हम उसको पिटी करते थे, भाई इसका आदमी कुछ पता ही नहीं है, क्या है सर्विस, क्या है IAS, क्या है सब समाज की सेवा, ये सिर्फ पैसे के ऊपर चिपटता। ये सोचना मैं सोच सकता, और कोई होगा जो माइंड का डिस्टर्ब माइंड होगा, वो सोचेगा सरपंच के विधान पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ो और मरो। सही है। तो मतलब इसलिए आप बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इससे भी बड़े से छोटा जो अपने को देखिए, कोई साधु आपके लिए सब बराबर ही है। मेरे लिए कोई साधु नहीं, तो नहीं कहना चाहिए। बहुत संतों को मैंने डाला है जेल में, तो साधु संत ऋषि मुनि मेरे को कोई मायना नहीं रखते हैं। मेरे लिए अपना बाप, पिताजी जो प्रोफेसर थे, राधा कृष्ण जी का स्टूडेंट थे, और मेरे माता जी जो बहुत आध्यात्मिक थे, जिनको एस्ट्रोलॉजी में नाम था। गुजरात का ऐसा कोई CM नहीं है जो उनको नहीं मिला है। क्या बात। तो इस तरह का घराना से हम जब आते हैं, हम इन्फ्लुएंस कहाँ से होंगे ज़्यादा लोगों से? हाँ, जहाँ कुछ अच्छा सीखना है, मैं भी छोटी फैमिली से भी सीखा हूँ। एक आदमी सहनशीलता में सीखा हूँ निचला वर्ग से, जो हम कहते हैं ना पछात वर्ग जिसको बोलते हैं, उनसे एक चीज़ मैं सीखा हूँ, उनका सहनशीलता इतना प्रकोप है कि हम लोग उसको लाना चाहिए। हम लोग उस जगह में होते तो मैं तो मार के फाड़ देता किसी को। यही शायद डिफरेंस है सर आप में और में। हाँ, मैं उनसे सीखा हूँ कि इतना होते हुए भी ये लोग कितना सहनशीलता है। तो वो मैं हमेशा मेरे फैमिली को बोलता हूँ कि देखो, ये मैं यदि होता उनकी जगह में, मैं तो फाड़ देता किसी को।
क्योंकि मेरा टेम्परेचर ऐसा है मेरा, बट इन लोग इतना सेंस है तो उसमें सीखना चाहिए। उसमें इससे सीखकर मैं भी, इसे कोई कम्युनिटी से सीखना नहीं, पूरा कम्युनिटी ट्राइबल से सीखा हूँ मैं। ऑनेस्टी, एक ट्राइबल आपके पास रहेगा वो आपके बिल्कुल ऑनेस्ट है, आपको कमिटेड है, वो कभी गद्दारी नहीं करेगा। बाद के लोग या इवन आज के लोग किस तरह से जाने, हाउ शुड आई बी रिमेंबर्ड बाय द पीपल। लोग जब मेरा नाम आए या आपका नाम आए मतलब, तो लोग कैसे याद करें? नंदा साहब का नाम आते ही उनके दिमाग में क्या इमेज बने? आप क्या चाहते हो? देखिए, लोगों जब जन्म होते हैं उनका नाम नहीं होता है, वो रोता है लेकिन नाम नहीं होता है। लोग रोते हैं, वो जब नाम हो गया होगा उसके बाद रोते हैं। फलाना आदमी मर गया, उस टाइम नाम नहीं था, वो खुद रोता था। अभी लोग रोते हैं, उसका नाम हो चुका था, लेकिन वो नाम में मजा नहीं है। माम है कि जब मरने के बाद उनके साथ कम्युनिटी नहीं, रिलेटिव्स नहीं, उनके परिवार नहीं, उनके साथ जो मोहल्ला में रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, सचमुच लोगों उसको पालते हैं, जिन लोगों को यादें रहता है, उसी को हम वो हमारा मूडी है, कैपिटल है। उसके लिए लोग कोशिश करना चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल ये है कि एक लाइन का आंसर, आप नियर फ्यूचर में क्या बदलाव देखना चाहिए? इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं? इंडिया में मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे एग्रीकल्चर बहुत तरक्की करे, और माइग्रेशन जो हो रहा है सब अहमदाबाद, बड़ौदा सिटी, सूरत सिटी जो आ रहे हैं, इसको स्टॉप किया जाए। जब तक हम लोग इस स्थलांतर को बदल नहीं देंगे या उसको रोक नहीं देंगे, तब तक गांव खाली हो जाएगा। गांव खाली हो जाएगा तो इसका एग्रीकल्चर पर असर आएगा, प्राइस राइज होगा, और लोगों यहाँ अगर सत्ताएँ बहुत परिश्रम करेंगे, इनकी शोषण होगा, पीड़ित होंगे। यहाँ स्कूल एजुकेशन में होगा, गांव लोगों सोचेंगे हम स्मार्ट बन गए आकर शहर में। ये सब जो आर्टिफिशियल खोटा फीलिंग्स है, इसको बंद करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि रूरल में ज़्यादा लोग रहना चाहिए, एग्रीकल्चर को सतत बढ़ावा होना चाहिए, शहरों पे लोड कम और रहेगा। कौशल्यवर्धन का जो तालीम है वो होना चाहिए। देखिए, दुनिया में अभी जितने हमारे गुजरात में जितने लोग काम करते हैं रोड पे, बिल्डिंग पे या सोलर में, कोई 10वां क्लास 11 क्लास से बड़ा नहीं है। जो मैं स्किल इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जी, कोई 11 क्लास हुआ जो है आपका सोलर, जो प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट कहता है कि सोलर का होगा, प्रचार होगा, सोलर का एक्सपेंशन होगा, मूल में कौन है? ये लोग हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौशल्यवर्धन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में बर्बाद करके पैसे बीएससी एमएससी करके फिर उसको अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सुसाइड करेगा और बाप को बोलेगा अरे क्या पढ़ाया मैंने, तुम कुछ जॉब नहीं करते हो। इससे अच्छा है स्किल करो और एजुकेशन में चले जाओ, जैसे जापान में होता है। तो मैं सोचता हूँ ऐसा इंडिया होना चाहिए, और एग्रीकल्चर का बढ़ावा होना चाहिए। इंडस्ट्री 10 बने या 2, हमारा इंडिया में से 15 कैपिटलिस्ट बने, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बने, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिचेस्ट मैन बनेगा उसका घर के लिए, लोगों को फायदा क्या है जी? कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हर एक घर में यदि बत्ती आएगी, हर एक घर में यदि इनकम होगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा। Sir, thank you so much. It was pleasure talking to you as always, and it was a learning experience. अगले एपिसोड में हम फिर किसी शख्सियत के साथ, फिर किसी पर्सनालिटी के साथ कुछ अनएक्सप्लोर्ड बातों को लेके आएंगे और बातचीत करेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड, और ये सारा प्रोग्राम आपको अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। थैंक यू सो मच।